Good morning, students. So, let us start our class. The next session in our list is session number 7, which is related to performing basic file operations. Alright. In this session, what we are going to understand is how you can perform basic operations on file, such as copying a file, opening a file, cutting a file, pasting a file, renaming a file, deleting a file, creating a file. So all these things are going to be studied by us in this particular session number 7. सेशन नंबर 7 में जो चीज़ें हम देखने वाले हैं वो क्या होंगी, फाइल कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन नंबर 7 में देखने वाले हैं. First of all, let us understand what generally a file format means. Alright, before beginning with the basic file operations, we have to know something about the formats of various files. So let us discuss those first. So all the files which are there on your computer or which are there on any computers generally have a file format associated with it. That file format is generally written, we can say it is generally written after a period. After a period means what? After a dot. All right, after a dot is also called as period. All right, you can see over here they have mentioned this, that dot is also called as a period. फाइल फॉर्मेट क्या होता है हम ये देखने वाले हैं. तो फाइल फॉर्मेट क्या मतलब क्या होता है, हर एक फाइल कंप्यूटर में जो भी फाइल्स होती हैं वो सारी फाइल्स का कुछ ना कुछ एक फॉर्मेट उसके साथ एसोसिएटेड होता है. और ये फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, एक पीरियड लगाया जाता है, मतलब एक डॉट लगाया जाता है और उसके बाद जो भी उस फाइल का फॉर्मेट होता है वो वहाँ पर लिखा जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग फाइल एंड इट्स फॉर्मेट. एज यू हैव ऑलरेडी मे हैव सीन, आप लोगों ने देखा होगा, like you have created a word file called abc. So if it is a file which is created on word, so you might have observed the name of the file ends with .doc or .docx. आप लोगों ने देखा होगा कभी जब आप कंप्यूटर्स पे फाइल सेव करते हो तो वो abc नाम की अगर आपने फाइल बनाई है तो हो सकता है उसका जो फाइल के बाद आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखा हो, .doc या .docx. ये जो फाइल के नाम के बाद ये चीज़ लिखी जाती है डॉट के साथ, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस चीज़ को बोला जाता है फॉर्मेट. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज अपेंडेड विथ द फाइल नेम, है ना. अपेंड करना मतलब कि उसके साथ लिखना, उसके साथ जोड़ना, है ना. टू कंबाइन वी कैन से, उसके साथ उसको कंबाइन करना, उसको बोलते हैं अपेंड करना. तो अपेंड किया जाता है, इट इज़ ऑलवेज अपेंडेड विद द नेम ऑफ द फाइल. अब यहाँ पर कुछ बेसिक फाइल फॉर्मेट्स इन्होंने बताए हैं, कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा. द फाइल्स विच आर क्रिएटेड ऑन MS Word जनरली हैव एन एक्सटेंशन विथ doc or docx. The files which are images, you might have observed the files which are saved on your mobiles. आप लोग मोबाइल से फ़ोटो खींचते हो, जो मोबाइल में फ़ोटो सेव होती हैं वो देखना, फ़ोटोज़ का जो फॉर्मेट होता है वो होता है .jpg. ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो .jpg होता है. इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक्स ग्रुप. ठीक है, JPG एक ये होता है, वन इज़ JPG एंड द अदर इज़ JPEG. There are two types of formats that generally are used for saving the images on your mobiles, which is JPG and JPEG. They are almost the same with some encoding changes. So JPG stands for Joint Photographic Groups and JPEG stands for Joint Photographic Experts Group. So this is also something that you already know. ये आपको पता होगा कि आपके मोबाइल में जो फोटोज़ होती हैं वो JPG फॉर्मेट में सेव होती है. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स. इफ़ यू सी एनी प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर, if you want to install any software on your computer, so all the softwares generally have the format of this .exe. कंप्यूटर्स में इंस्टॉल की जाने वाली सारी की सारी जो फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सटेंशन .exe ही होता है. ये हमको पता होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज़, let me change the size. Next thing is multimedia files. There are many multimedia files that you can find on your computer. आपके पास कुछ गाने हैं अगर कंप्यूटर में तो you will find that its format is MP3.
अगर कोई वीडियो फाइल है तो हो सकता है उसका फाइल फॉर्मेट हो MP4, और इट मे बी लाइक डॉट MKV, or many different types of formats are there. AVI, so AVI is also a video format. So there are many different formats which can relate to the multimedia files. मल्टीमीडिया फाइल्स के लिए बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं. यहाँ पर एक इन्होंने लिखकर भी बताया है जो है WMA जो होता है एक विंडोज़ मीडिया प्लेयर करके एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में जो प्री इंस्टॉल्ड आता है. अगर हम विंडोज़ सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर. सो द फाइल्स विच आर मेड फॉर विंडोज़ मीडिया प्लेयर generally have the format of WMA, which represents Windows Media Audio. तो WMA stands for Windows Media Audio. और MP3 और ये सारे के सारे जो होते हैं ये भी कुछ आपके साउंड से रिलेटेड फॉर्मेट्स ही हैं. नेक्स्ट थिंग, लेट अस मूव टू द टॉपिक. The next topic that they are explaining us is the major topic of this chapter, which is file operations. Let us see what is given to us. In this part they have given us one table there where there are many points. एक table दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे points हैं. Now what we are going to study in these table, तो इस table में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी. We will see how to create a file, we will see how to save a file, वी विल सी हाउ टू ब्राउज अ फाइल. ब्राउज करना मतलब वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फाइल, और उस बनी हुई फाइल को हमको अगर ओपन करना है तो यू यूज़ द टर्म ब्राउज द फाइल. नेक्स्ट थिंग, हाउ टू डिलीट द फाइल एंड हाउ टू रीस्टोर द डिलीटेड फाइल. अगर आपने कोई ऐसी फाइल डिलीट कर दी जो आप डिलीट नहीं करना चाहते थे और उसको आप वापस चाहते हो, तो हाउ यू कैन गेट दैट फाइल बैक once it is getting deleted. So this we will be seeing in some points which are given to us below. यहाँ पर देखो एक टेबल दिया हुआ है, उसमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं और नेक्स्ट पेज देखेंगे तो वहाँ पर और कुछ पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स. तो टोटल यहाँ पर 15 पॉइंट्स दिए हुए हैं. सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आपको आपके कंप्यूटर पे वर्डपैड ओपन करना है. वर्डपैड ओपन करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो टू स्टार्ट and then click on all programs. Under the all programs click on accessories, and under the category of accessories open WordPad. आप लोगों ने स्टार्ट पे गए, ऑल प्रोग्राम्स में गए, एसेसरीज में गए, वर्डपैड पे क्लिक किया. Once you open WordPad, now they are telling you to add some text in the document. अब आपको जो पेज दिख रहा होगा वर्डपैड का, जो सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर ओपन होकर दिख रहा होगा, आपको उस पर क्या करना है, अब वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट ऐड करना है ना. फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज ओनली यू हैव टू टाइप समथिंग एंड टू हैव द टेक्स्ट टाइप. और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है. For saving the document, what you need to do, for saving the document you need to go to the file menu. Under the file menu you will find an option of save as. As soon as you will be clicking on the option of save as, they will be telling you to name the file. So there you have to name the document ABCXYZ, my first document, or whatever it may be, whatever name you want to give, you have to give that name, and then you will have an option of saving the file. So you have to click on the save button. Now once you have clicked the save button, that file will be saved. All right, now if you want to close this file, you have to click on the close button. You can find the close button on the very top bar, which is known as the title bar. Over here you find minimize button, maximize button and close button. So from this option you can close the window of that file. Now टू व्यू द डिफरेंट प्रोग्राम, अगर आपको कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन करना है तो आप क्या करोगे, स्टार्ट में जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, और फिर अगर आपको जैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन करना है तो एसेसरीज़ में जाओगे और विंडोज़ एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे. ऑलराइट, नाउ इफ़ यू वांट टू क्लोज दिस फाइल, सो सिंपली क्लिक ऑन द क्लोज बटन. अब आपने जो ये एक फ़ाइल बनाई थी अभी ऊपर, जो अभी आप लोगों ने ये सैम्पल फाइल बनाई है, नाउ यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, है ना. अगर आपको इस फाइल को डिलीट करना है, अब डिलीट करना है अगर इस फाइल को आपको, वेट अ मिनट, ऐप इजंट अवेलेबल, ओके. Okay, so if you want to delete the file, so what you can do for deleting the file, you have to keep this thing in mind that the particular file is selected. मतलब आपने उस पर एक बार क्लिक कर दिया है, वो selected होनी चाहिए. Once that file is selected, then you need to do what, you have to right click, and after right clicking what you need to do,
you have to click on delete. There is an option of delete once you click once you right click. तो वो delete पे आपको click करना है. वो आपसे पूछेगा are you sure you want to delete this file. So in that option you have to click yes, and once you click yes, that file will get deleted. Now अगर आपको लगता है कि आपने फाइल डिलीट कर दी, मुझे वो फाइल डिलीट नहीं करनी थी, आई वांट दैट फाइल बैक, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सी देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द डिलीटेड फाइल्स ऑफ योर कंप्यूटर्स गेट स्टोर्ड. है ना, आप जो भी फाइल्स डिलीट करते हो वो सारी की सारी कहाँ पर जाके रखी स्टोर हो जाती हैं, वो सारी की सारी फाइल्स रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती हैं. अब वहाँ पर हमने जैसे सैम्पल फाइल डिलीट की है, तो ये आपको सैम्पल फाइल वहाँ दिखेगी. आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ पर फिर से राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर जो होगा रीस्टोर का. तो आपको रीस्टोर पे क्लिक करना है. जैसे आप रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फ़ाइल जहाँ पर थी इट विल बी नाउ सेव्ड बैक टू दैट ओरिजिनल लोकेशन फ्रॉम वेयर यू हैव डिलीटेड इट. ठीक है. Now, next topic which is given to us is managing or customizing files and folders. So the first most thing that is seen over here is files and folders. So we should know what files are. A file in a computer terminology can be considered as a modern computer counterpart of paper documents which traditionally were kept in offices and libraries. पुराने समय में क्या होता, सारी चीज़ें हार्ड कॉपी होती थी, फाइल्स के फॉर्म में रखा जाता था, मोटी मोटी फाइलें होती थी, बहुत सारे पेजेस होते थे, हर किसी का अलग अलग डॉक्यूमेंट होता था. अब क्या हुआ है, द टाइम हैज़ चेंज्ड. Now as per the advancement in this technology, what has happened, now we are having everything in computers saved in the form of files. All right, so the term file is used in the computer for a block of arbitrary information or resource for storing information. Arbitrary information का मतलब हुआ कि स्वैच्छिक, मतलब मेरी इच्छा के अनुसार, as per my wish मैंने कोई फाइल बना के रखी है और मैंने सेव करके रखी है. सो दैट इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन केप्ट एज पर माई विश विल बी कॉल्ड एज वॉट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फाइल. All right, that file can be anything. It can be a text file, it can be a picture file, it can be a audio file, it can be a video file, है ना, इट कैन बी एनीथिंग. तो कुछ भी हो सकती है वो फाइल, मतलब ठीक है. सो वी कैन सेव द फाइल्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. From the figure below, you can observe one thing, that this is a JPG file. So you can see the name of the file is billgates.jpg. तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना .jpg, ये .jpg क्या है, ये .jpg उस पर्टिकुलर फाइल का फॉर्मेट है. आप .jpg देखकर या ये jpg फाइल लिखा हुआ देखकर समझ सकते हो that this is an image file. All right, the next thing is .txt. .txt is generally what it is, a text document that has been saved on Notepad. You have saved a file using Notepad, created a file using Notepad, and gave it a name of Thoughts of Pranav, है ना. Thoughts of Pranav नाम की आपने फाइल बना दी, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .txt. txt से पता चल जाएगा कि ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So how to rename a file? So for renaming a file, what you need to do, you have to click on this file once. Once you click on this file, you have to right click on it, and as soon as you right click on that file, you will see many different options like this which are given on your screen right now. And from these options you have to find an option of rename. That will be the second option from the bottom. So you have to click on rename. So now you can see you can edit over here, है ना. They are giving us the option of editing the files. So from here you can edit the name and you can give it a different name. जैसे कि पहले नाम था Thoughts of Pranav, अब नाम है Views of Pranav. तो इन्होंने फाइल का नाम चेंज कर दिया. So this is something that they did. Now इंस्टेड ऑफ यूजिंग माउस, मतलब आपने राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया और फिर उसका फाइल का नाम चेंज किया. इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू कैन डू इज सिलेक्ट द फाइल, and after selecting the file just click F2 on your keyboard. जो ऊपर एस्केप बटन होती है लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में, उस लाइन में बटन्स होती हैं F1, F2, F3, F4. सो फ्रॉम देयर यू हैव टू फाइंड अ बटन विच इज़ लेबल्ड एज F2.
So as soon as you will click the file which is labeled as F2, and you can directly be allowed to change the name of the file and you can change the name. तो आप डायरेक्टली F2 भी प्रेस करोगे तो भी आपको फाइल रीनेम करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा. सेम वे अब डिलीट कैसे करें, तो डिलीट करने के लिए भी देखो, राइट फाइल को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करो. तो जैसे राइट क्लिक करोगे तो ऐसा एक रीनेम के ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर दो तो आप उस फाइल को डिलीट कर सकते हो. इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ माउस, सो जस्ट सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक द डिलीट बटन ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड पे एक डिलीट नाम का बटन होता है, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड योर फाइल विल गेट डिलीटेड. ऑलराइट. हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट. कॉपी और पेस्ट करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. यू हैव टू सेलेक्ट द फाइल दैट हैज़ टू बी कॉपीड समवेयर एल्स. जस्ट क्लिक ऑन द फाइल एंड राइट क्लिक ऑन इट and select copy, and after copying the file, choose the location where you want to save that file and go to that location and click on just right click over there and click on paste. As soon as you do this, your file will get pasted at a different location also. ठीक है. एंड अदर थिंग दैट यू कैन डू, आपने कॉपी तो देख लिया, कंट्रोल सी दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगा. ये शॉर्टकट्स भी आपको पता होना चाहिए. कंट्रोल सी जो होता है वो कॉपी का शॉर्टकट होता है और कंट्रोल वी जो होता है वो पेस्ट का शॉर्टकट होता है. सिमिलरली एक और शॉर्टकट होता है कट का, जो कि होता है कंट्रोल प्लस एक्स. तो आपको ये 3 शॉर्टकट्स पता होना चाहिए. कंट्रोल एक्स कट का, कंट्रोल सी कॉपी का, कंट्रोल वी पेस्ट का. अब क्या कर सकते हैं, कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ. कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. कॉपी पेस्ट में क्या होगा, जैसे कि एक लोकेशन है जहाँ पे आपकी फ़ाइल है और आपको यहाँ पे ये जो फाइल है, इस फाइल को इस लोकेशन पे सेव करना है. ठीक है. जब आप इस फाइल को इस लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हो और आपने कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो फाइल है वो यहाँ भी रहेगी और वो फाइल अब यहाँ भी रहेगी अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो. ठीक है. इफ़ यू डू कॉपी पेस्ट, सो अ डुप्लीकेट कॉपी विल बी क्रिएटेड एट द लोकेशन वेयर यू आर पेस्टिंग इट. जहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हो वहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी. मतलब जहाँ पर थी वहाँ पर तो रहेगी और उसके बाद जहाँ पर आप कॉपी कर रहे हो वहाँ पर भी वो चीज़ आ जाएगी. मतलब 2 कॉपीज़ क्रिएट हो जाएंगी उसकी. अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये वाला जैसे मेरा फ़ोल्डर है, इस फोल्डर में ये जो फाइल है मैं इसको यहाँ पर मूव कर दूँ और यहाँ पर ये जो मेरी ये वाली लोकेशन है यहाँ से ये वाली फ़ाइल हट जाए. अब यहाँ से ये वाली फ़ाइल अगर आपको हटानी है तो हटाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तो इस फाइल को हटाने के लिए आप लोगों को कॉपी पेस्ट की बजाय इस बार कट पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा. कट पेस्ट क्या करेगा, यहाँ से वो फाइल हटा देगा, मतलब ये वाली फ़ाइल यहाँ से हट जाएगी, ये देखो ये हट जाएगी ऐसी, और इस लोकेशन पे जाकर पेस्ट हो जाएगी और यहाँ पर सेव हो जाएगी. यहाँ से गायब हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी. दिस विल बी कट पेस्ट. कॉपी पेस्ट होता तो यहाँ भी रहती और यहाँ भी रहती, बट कट पेस्ट है तो यहाँ नहीं रहेगी पहली लोकेशन पे और यहाँ पर आ जाएगी. सो वो ओरिजिनल लोकेशन से हट जाती है और दूसरी लोकेशन पर पेस्ट हो जाती है. दिस इज़ कट पेस्ट. कॉपी देखो, कट, कॉपी और पेस्ट 3 चीज़ें हैं. तीनों के शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए. कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट का, कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी का, कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट का. ये 3 शॉर्टकट्स बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें. जिसको नहीं पता है वो लोग नोट कर लें कि कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स शॉर्टकट्स किन किन चीज़ों के हैं. ठीक है. तो आपको इस तरीके से कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए. रीनेम करने के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है कि रीनेम कैसे करना है. तो F2 दबा कर हम रीनेम कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. यही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि F2 बटन प्रेस करो और फिर नाम टाइप कर दो और टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दो तो वो सेव हो जाएगा, मतलब वो नाम चेंज हो जाएगा. सिमिलरली डिलीट कैसे करना है, तो राइट क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक कर दो, है ना. राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर दो. नहीं करना है ऐसा तो कीबोर्ड पे एक डिलीट नाम की की होती है, उस पर प्रेस करके यू कैन डिलीट द फाइल. कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, एवरीथिंग इज़ गिवन टू अस ओवर हियर. अब देखो,
Now you are into a folder where there are 6 files and you want to select all the files. You don't want to select this particular file, but you want to select all the files which are there on your screen. So to select all the files also there is a shortcut, that is control plus A. अगर आप कंट्रोल प्लस ए दबाते हो तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करने से आप लोगों के सामने जितनी भी फाइल्स होंगी एक फोल्डर के अंदर, अगर कोई फोल्डर सामने दिख रहा है, सो ऑल दोज फाइल्स विल गेट सिलेक्टेड. Alright, so just keep this thing in mind that there is one more shortcut that you need to remember, and that is control plus A. Just remember this. Next thing, let us move to the next topic which is given to us. Again, you don't want to select all the files, but you want to select only 4 files which are given on the top. So if you want to select these 4 files, so what you can do, you can click on this very first file, and after clicking on very first file, you can press shift key on your keyboard and keep the shift key pressed and use the, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शिफ्ट प्लस जो आपकी एरो कीज़ होती है, टॉप, बॉटम और राइट और लेफ़्ट, आप इन एरो कीज़ से नेविगेट कर सकते हो आजू बाजू में, एंड यू विल सी द अदर फाइल्स गेटिंग सिलेक्टेड वाइल यू कीप योर शिफ्ट की प्रेस्ड, है ना. तो शिफ्ट की प्रेस्ड रख कर भी आप लोग अलग अलग कुछ फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो. बट व्हाट इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट दिस फाइल and this file? Now you want to select 3 different files at 3 different locations, which cannot be selected by control A because it will select all the files. It cannot be selected by shift because shift will be selecting these 2 files. But how you can select this? If you try to select this file, so these and these files will also be selected. So now अगर आप शिफ्ट प्रेस करके दबाते तो ये दो तो कॉपी हो जाती, पर इसको कॉपी करने के लिए आप कॉपी नहीं कर पाते ना, ये और ये भी सिलेक्ट होती है अगर हम नीचे वाली एरो की दबाते शिफ्ट के साथ. तो यहाँ पर अगर आपको ये वाली और ये वाली फाइल को सिलेक्ट करना है तो सिंपली क्लिक कंट्रोल ऑन योर कीबोर्ड, कंट्रोल दबा के रखो, इस फाइल पे क्लिक करो, इस फाइल पे क्लिक करो और इस फाइल पे क्लिक करो, तो क्या होगा, ये तीनों फाइल्स सिलेक्ट हो जाएंगी. तो ऑल फाइल्स सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सारी की सारी फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना पड़ता है. ऊपर की कुछ रोज़ या कुछ फाइल्स को सिलेक्ट करना है, आजू बाजू में सारी फाइल्स हैं तो कॉन्जिक्यूटिव फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट की प्रेस कर सिलेक्ट कर सकते हो. और रैंडम फाइल्स को अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो रैंडम फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. Okay, so this is done. We are given with some assessment in this chapter, and we are moving to the next session. So what is an assessment which is given to us? Which 2 keys can help you copy a file? So which are the 2 files that you can use on the keyboard to copy a file? The first one will be control and the second one will be copy bola na, the second one will be C. So these 2 files will be your keys. What combination of keys will help you to select all the files? So all the files will be selected by using control. Along with control you have to press A. So control plus A will be allowing us to select all the files. Alright, so this is something which is given to us, and then we are moving to our next session. We will be studying this session in the next class. Today once this class is finished, when watching this video is finished, try to go through this session completely and read and understand whether you can open a file, you can create a file, save a file, delete a file, restore a file. If you are not aware of things or if you find something difficult in this session, so please ask me in the group or personally so that I can clear your doubts. Alright, so students, thank you so much. See you in the next class.